Hello everybody, welcome to Sneha classes. In this class we are going to discuss why I like the hospital stanza wise. In previous video we have discussed the setting about the poem, the themes, everything like important relating to this poem. Okay, so let's discuss this. So see what is written here. I am starting with the first stanza. Because it is alright to be in a bad mood there, slouching along through the underground garage. Okay, because it is, see you can see because we use because to give the reason, है ना, to give the reason of any question. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का या फिर आपके किसी भी लाइकनेस का, किसी की हेटनेस का अगर आपको आंसर देना है तो आप बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं. और यहाँ पे स्टैंजा को टॉनी हॉगलैंड जो कि हमारे पोइट हैं उन्होंने स्टार्ट किया है बिकॉज से. तो आप समझ सकते हैं बिकॉज का इस्तेमाल किस सेंस में किया गया है. बिकॉज इट इज ऑल राइट टू बी इन अ बैड मूड. यस, टू बी इन अ बैड मूड वेयर, टू बी इन अ बैड मूड देयर. ओके, so slouching along through the underground garage. So in this stanza poet is giving us a reason. एक कारण बता रहे हैं. किस चीज का कारण बता रहे हैं? कि उनको हॉस्पिटल क्यों पसंद है. देखिए, हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहां पे वी आर अलाउड टू शो आवर बैड मूड. अगर इफ यू आर इन बैड मूड यू कैन शो दैट मूड फ्रीली इन हॉस्पिटल. ओके, there stands for hospital. Clear? Slouching along through the underground garage. Now what is the meaning of slouching? Slouching means to move freely. मतलब slouching along through the underground garage. Underground garage मतलब क्या होता है यहाँ पे? पार्किंग लॉज. मतलब पार्किंग लॉज. आप पार्किंग लॉज में फ्रीली घूम सकते हैं विद दैट पेल फेस. ठीक है, आपको अगर दुख महसूस हो रहा है तो हॉस्पिटल वो जगह है जो हमको परमिशन देती है उस अपने फीलिंग, अपने दुखी वाली फीलिंग को शो करने के लिए. क्लियर? समझ में आई बात? यहाँ पे वही चीज लिखा गया. देखिए, मैंने जो यहाँ पे लिखा मैं उसको आपको डिस्क्राइब करूं. At the start of the poem, the speaker sets the tone. Yes, the poem is going to be about gloom and will revolve around a bad mood. Obvious, we are talking about the hospital, so we in this poem we are actually surrounded by the bad mood or a bad setting. In a hospital, negative feelings are accepted freely. Okay, so therefore it doesn't matter if someone is depressed while in the hospital. If you are in hospital and you are depressed, so don't worry. You are free to feel whatever you want. मतलब आपको क्या फील करना है, कैसे फील करना है, आप उसके लिए फ्री हैं. हॉस्पिटल विल अलाउ दैट. There won't be any trouble if one moves carelessly. अगर आप हॉस्पिटल के पार्किंग लॉज में केयरलेसली मूव कर रहे हैं बिना बॉडी में किसी रिदम के, तो वो भी अलाउ है, आप मूव कीजिए. So when at a hospital it's acceptable for people to not be at their best. So hospital में क्या है? Nobody will force you to smile. Nobody will force you to show your best face of yourself. Okay, so you are allowed to show your worst face there. It's acceptable for people to slouch, to be depressed and simply embrace their unhappiness throughout the day. Okay, so contrary to when people are in a social setting, it's not acceptable when someone walks or talks with poor posture. Yes, this is contrary, this is irony actually. अभी जो हम लोगों ने बात किया इसका ठीक ये उल्टा है. हॉस्पिटल विल अलाउ यू टू शो योर ग्रीफनेस. आप अपना दुखी को दिखा सकते हैं हॉस्पिटल में. नोबडी विल फोर्स यू टू बी हैप्पी. आपको खुश रहने के लिए कोई नहीं फोर्स करेगा. बट if we talk on contrary path, we will see when you are surrounded with your friends. There are 10 friends. Okay, 5 friends. Let's take 5 friends. And one of our friend is like he is so unhappy. He is like उसका खुश रहने का मन नहीं है, वो उदास बैठा हुआ है. तो rest of 4 will question him. क्या होगा कि बाकी के जो 4 हैं वो क्या करेंगे? उससे क्वेश्चन करेंगे. And they will force him to be happy as if they are not feeling comfortable.
5 के ग्रुप में अगर एक जो है अनहैप्पी है तो बाकी के 4 क्या करेंगे, उसको जबरदस्ती बोलेंगे खुश रहने के लिए। समझ रहे हैं ना, ये तो कॉमन सी बात है, ये हम लोग फेस करते हैं। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि सोशल सेटिंग में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं व्हेन समवन वॉक्स और टॉक्स विद पुअर posture. If you will go to your relative's house and you are feeling so sad, you are having that bad mood, so क्या है, वो आपके जो रिलेटिव है वो एक दिन बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन बर्दाश्त, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, why you come in that mood daily, आप उसी मूड में क्यों आते हैं, be happy. Okay, so basically nobody will accept your sad feeling except the hospital where we can share our feelings freely. Okay, so I hope this part of our first stanza is all clear to you. Okay, let's go forward. Okay, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये जो मैंने वर्ड्स के कुछ मीनिंग लिखे हैं, इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। ओके, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है। ओके, देखिए क्या है। Riding wordlessly on the elevator with the other customers, staring at the closed beige doors like a prison wall. Riding wordlessly, ना what is the meaning of riding wordlessly? Wordlessly का मतलब होता है बात नहीं करना, है ना। Wordlessly मतलब क्या होता है, without talking, without talking, ठीक है। राइडिंग वर्डलेसली ऑन द एलिवेटर, है ना। अब क्या होते हैं, सारे के सारे जो लोग होते हैं, या तो कोई पेशेंट्स होता है या फिर कोई कुछ पेशेंट्स के रिलेटिव्स होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, दुखी ही होते हैं। तो ऑब्वियस दे आर नॉट इन दैट मूड टू शेयर देयर फीलिंग्स, टू टॉक मच, उनका उतना मूड नहीं रहता है। तो हॉस्पिटल विल अलाउ यू दिस, जो भी लोग वहां पे खड़े हैं और आपके साथ एलिवेटर में है, दे विल नॉट फोर्स यू कि मेरे से बात करो, इट इज अलाउड दैट। सो राइडिंग वर्डलेसली ऑन द एलिवेटर विद द अदर कस्टमर्स, यस वेरी इंपॉर्टेंट, ये कस्टमर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सुनिए, कस्टमर्स मतलब क्या होता है, व्हेन इफ यू आर पेइंग फॉर समथिंग यू आर कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर का जो इस्तेमाल है वो हमारे पोइट ने सरकाज़म में किया है, क्योंकि पेशेंट्स आर बेसिकली कस्टमर्स, पेशेंट्स आर basically what, customers, as if they need to, as if when we go to hospital what we receive the service of doctor, right। हम लोग क्या करते हैं, सर्विस लेते हैं और उसके बदले में हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो मोरलेस व्हाट वी आर कस्टमर्स, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली सरकाज़म में इस्तेमाल किया गया है। So customers staring at the closed beige colors, you are allowed to stare that beige closed beige color. Now what is beige? Beige is a light brown color, light brown color, okay, and doors like a prison wall. See, this is simile, ये क्या है हमारा, ये simile है ना, लाइक अ प्रिजन वॉल। जो क्लोज्ड बेज कलर, आपको पता है हम लोग जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो आप हॉस्पिटल के कलर कभी पिंक, येलो, रेड नहीं देखेंगे। कौन सा कलर इस्तेमाल किया जाता है, जो फेडिंग कलर है, व्हाइट, दैट बेज कलर, दैट क्रीम कलर, पेस्टल कलर, यही सब इस्तेमाल किया जाता है। रेड येलो में नहीं होता है हॉस्पिटल, ठीक है ना। एंड दोज कलर एक्सप्रेस व्हाट, दैट पेलनेस, दैट सैडनेस, ठीक है ना। और वही क्लोज मतलब बेसिकली हॉस्पिटल को क्या किया गया, पूरी तरीके से प्रिजन वॉल से कंपेयर किया। हॉस्पिटल की दीवारों को यहाँ पे क्या चीज से कंपेयर किया गया है, प्रिजन वॉल से, जेल की दीवारों से। क्योंकि जेल में भी जो कैदी रहते हैं वो क्या होते हैं, वो बंधे हुए रहते हैं, उनको अपना जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। और सेम एज दैट पेशेंट्स आर लाइक दैट ओनली, उनके लिए भी जो हॉस्पिटल की दीवारें हैं वो क्या होती हैं, प्रिजन वॉल के तरह ही होती हैं। ठीक है, आई होप ये पार्ट भी आपका क्या हुआ, क्लियर हुआ। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द मीनिंग्स व्हिच आई हैव रिटन हियर। ओके, लेट्स डिस्कस द रिटन पार्ट। द पोएट डिस्कसेस हाउ लाइफ्स लोनलीनेस एंड एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब आप सबसे अलग फील करते हैं। लोनलीनेस बेसिकली आर रिप्रेजेंटेड बाय साइलेंट एलिवेटर राइड्स। Closed beige doors are representation of the hospital patients. Restrictions, हाँ, जैसे प्रिजन वॉल में क्या होता है, जो कैदी रहते हैं they are restricted, उन पे बहुत सारे restrictions रहते हैं। Just like the patients are having that much restrictions. And the hospital appeals to the speaker because in contrast to the society, a hospital gives PT permission, है ना। सोसाइटी में आप बाहर निकलेंगे तो आपको हर चीज का परमिशन है, लेकिन हॉस्पिटल में आपको हर चीज का परमिशन नहीं मिलता है।
सो यू फाइंड योर सेल्फ स्टेरिंग एट द क्लोज बेज कलर्स, आप क्या करते हैं, वहां पे कुछ करने का नहीं है, सो यू यूज टू स्टेयर द बेज डोर कलर, आप वही दीवारों को घूरते हैं. And doors, as you take the elevator silently with the other customers, their blandness suggesting a prison wall. हाँ, emotions are frequently raw and freely expressed in the hospital setting. अब यहाँ पे क्या है, जो आपके feelings है वो you are allowed to share your feelings. आप अपने जो वहाँ पे और भी आप एक ही customers तो नहीं होते, एक ही patients तो नहीं होते, बहुत सारे patients होते हैं और सब के सब एक जैसे ही feel करते हैं, उनमें कोई बात विचार करने का मूड नहीं रहता है और वहां पे कोई फोर्स भी नहीं करता है कि आप एक दूसरे से क्या करें, बात करें या कुछ भी, क्योंकि सब एवरीवन प्रेजेंट देयर वो हैव लाइक हैविंग द सेम काइंड ऑफ फीलिंग्स, सो दे वर नॉट अलाउड, दे वर नॉट फोर्स टू टॉक विद देमसेल्व्स, उनका अलाउ ही नहीं होता है. क्लियर? आई होप कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था वो आपका क्लियर हुआ. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. देखिए आगे क्या लिखा हुआ है. अच्छा, थोड़ा सा एनोटेशंस देख लेते हैं. एनोटेशन क्या है इसका, ये फर्स्ट तो हम लोगों ने लाइन वाइज समझा, लेकिन एनोटेशंस भी होते हैं पोएम के जो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए क्या है. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट बिगिंस स्ट्रेट with his explanation as to why he likes the hospital. As I have told you, because इट इज अलाउड, बिकॉज क्या है, बिकॉज आप स्टार्ट ही करते कुछ रीजन को दिखाने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है. इट इज बिकॉज इट्स ऑल राइट टू डिस्प्ले वंस बैड मूड और टू एक्सप्रेस वंस पेन इन अ हॉस्पिटल, ठीक है, एंड नाउ ए हेल्थ, और कहीं और तो नहीं होता है. सो एक्चुअली इन द मॉडर्न डे सोसाइटी वी हार्डली हैव स्कोप टू एक्सप्रेस आवर रियल फीलिंग्स. यस, इन मॉडर्न डे सोसाइटी एवरीवन फेस दिस, क्योंकि हम लोग को अलाउ नहीं रहता है कि हम लोग अपनी फीलिंग को शेयर करें openly. So we always try to wear a smile in the public event if we are not feeling good. ये तो है ही, आप अच्छा नहीं भी फील करते हैं तो क्रिटिसिज्म से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, we wear that smile, that fake smile, okay, from the inside. Thus the opening line of the poem is Hoglan's humorous but critical jibe at the contemporary life. So in the next three lines the poet describes the experiences of navigating through the hospital, slouching along in the underground garage and riding the elevator in silence. The patients stare at the closed beige-colored doors, okay, of the lift, which become what, symbolic of confinement. ये किस चीज का, इसीलिए वहां पे prison wall बोला गया है, क्योंकि वो जो लिफ्ट की दीवारें हैं, जो हॉस्पिटल की दीवारें, दे ऑल आर इन बेज कलर्स एंड दे आर बेसिकली, पोएट हैज यूज्ड those colors or those closed doors as symbol to express how patients are captivated. कैसे patients को captivate करके रखा जाता है, कहाँ पे, हॉस्पिटल में. Here also the poet criticized the business mindedness of the hospitals for treating the patients as customers. और यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है, customers का इस्तेमाल जो है पोएट ने इसीलिए किया है टू क्रिटिसाइज द हॉस्पिटल्स, जो जितने भी हॉस्पिटल्स, जो एक मैनेजमेंट होता है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए हमारे पोएट ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, कस्टमर का इस्तेमाल किया है. क्योंकि आपके पास पैसा है या नहीं है उसका हॉस्पिटल जो है वो नहीं देखेगा. यू हैव टू पे इट एनी हाउ, आपको कैसे भी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो यही एनोटेशन था फर्स्ट स्टैंजा का. चलिए अब आगे देखिए क्या है. Okay, see, like the hospital for the way it grants permission for pathos. Now, what is the meaning of pathos? Pathos मतलब sad feeling. क्या होता है, sad feeling. Clear? Pathos. The mother with cancer, like the hospital for the way it grants permission for pathos. Hospital will give you permission for showing your pathos, for showing your ग्रिफनेस, सॉबरनेस, आप वहां पे फ्रीली शो कर सकते हैं. अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे एक एक करके सीन हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल का. पहला, द मदर विथ कैंसर डिसाइडिंग हाउ टू टेल हर किड्स. एक तरफ देखा जाता है कि एक मदर है जिसको ट्रैक किया गया है कि दैट मदर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. नाउ शी इज थिंकिंग कि वो इस चीज को अपने बच्चों के साथ कैसे शेयर करेगी, अपने हस्बैंड के साथ कैसे शेयर करेगी.
द बाल गर्ल गेजिंग डाउनवर्ड, वहां पे एक बाल गर्ल यानी कि एक लड़की बच्ची बैठी हुई है एंड शी इज बाल यानी कि उसके हेयर जो है वो हट गए हैं, सारे गिर गए हैं। गेजिंग डाउनवर्ड, वो क्या कर रही है, नीचे देख रही है। एट द शंट, शंट का मतलब क्या होता है, अ पाइप काइंड ऑफ, एक पाइप तरह का होता है जो हमारे यहाँ पे नर्व में सेट किया जाता है टू पास एनी काइंड ऑफ फ्लूइड इन आवर बॉडी। ओके, अब देखिए क्या है, इंस्टॉल्ड अबव हर मिसिंग ब्रेस्ट, लेकिन यहाँ पे शंट जो है उस लड़की का, जो गर्ल है, उसको कहाँ पे उसको फिट किया गया, उसके ब्रेस्ट पे फिट किया गया है। इंस्टॉल्ड अबव हर मिसिंग ब्रेस्ट, आप देख रहे हैं मिसिंग ब्रेस्ट का मतलब क्या, उसका ब्रेस्ट जो है उसको निकाल दिया गया है। इसका मतलब क्या है, दैट गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। ओके, द crone in her pajamas walking with an IV pole. Now what is the meaning of crone? crone का मतलब जो होता है, crone का मतलब एक होता है बैड लेडी, है ना, जो थोड़ी सी बदमाश औरतें होती हैं उनके लिए क्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। डेरोगेटरी वर्ड है ये क्रोन, ठीक है। जब आपको किसी को एक गलत एडजेक्टिव से इस्तेमाल करना है तो क्रोन आप बुला सकते हैं। क्रोन लेडी जो बुढ़िया होती है, बूढ़ी लोग होती है जो बहुत बदमाश होती है उनके लिए। लेकिन यहाँ पे ये जो है वो एक पॉजिटिवली तरीके से दिखाया गया। इफ यू आर यूजिंग क्रोन इन द पॉजिटिव सेंस, इट मीन्स दैट वुमन इज वेरी ओल्ड, ठीक है ना। सो द क्रोन इन हर पैजामाज वॉकिंग विद एन आईवी पोल, वहीं पे एक क्रोन है, एक बूढ़ी औरत है जो अपने पैजामाज पहन के वो क्या करिए, वॉक करिए, क्या चीज के साथ, आईवी पोल के साथ। आईवी पोल जानते हैं, वो एक स्टैंडिंग रहता है, उससे आपका जो है वो पानी वानी जो है वो दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। सो वो वॉक करते। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीज देखा, क्या, अ लेडी, a mother with cancer, a bald girl whose breast has been removed from her body, and a crone in her pajamas walking with an IV pole. So these scenes, like ये precisely scenes को poet ने हमारे सामने रखा है कि आप emphasize करने के लिए, किस चीज को emphasize करने के लिए, to show the atmosphere, the actual atmosphere of hospital. Okay, देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखिए क्या है ये, इसको डिस्कस करते हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा द स्पीकर reiterates, ओके ये पहले इसको थोड़ा सा, यस नाउ इट्स गॉट इट, reiterates that he likes the hospital because it is the only place where you have permission for pathos, we have discussed, for or intense emotions. He observes various individuals in distressing situations. बहुत सारे लोग distressing situation में हॉस्पिटल में दिखते हैं, जहाँ एक मदर दिखती है किस चीज के साथ, कैंसर कंटेम्पलेटिंग के साथ, how to share the news with her children. एक बाइल्ड गर्ल है, लुकिंग डाउनवर्ड एट द शंट, अ स्मॉल ट्यूब कैरिंग ब्लड अबव हर मिसिंग ब्रेस्ट, वो देखती है उसका जो वो शंट है वो ब्रेस्ट के अंदर उसको फ्लूइड पहुंचाना है तो ब्रेस्ट के जरिए पहुंचाया जा रहा है। An elderly woman, that is crone, wearing pajamas walking with an intravenous pole, IV pole का full form है, pole for hanging bags of liquid medications, आप हॉस्पिटल में अक्सर देखते हैं। And these touching scenes evoke a sense of empathy in the readers. ये सब जब आप पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारे actual situations को दिखाया जाता है ना, जो हॉस्पिटल में जो लोग रहते हैं वो ये नज़ारा है हॉस्पिटल का, ये क्या है, ये सिनेरियो है जो हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं। और यही सिनेरियो की वजह से हमारे अंदर हॉस्पिटल को लेके हेट है, लेकिन हमारे पोएट को हॉस्पिटल में लाइकनेस है, हॉस्पिटल से लाइकनेस है, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे क्या है, ओके अब यहाँ पे एनोटेशंस दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करें, यस नाउ इट्स ओके। देखिए ये थोड़ा सा एनोटेशन है यहाँ पे, वही सो इन द सेकेंड स्टैंजा, यहाँ पे वही चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप, ये इंपॉर्टेंट ये एनोटेशंस है। सो इन द सेकेंड स्टैंजा पोएट इज सेइंग दैट द हॉस्पिटल अपील्स टू द स्पीकर बिकॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू सोसाइटी अ हॉस्पिटल गिव्स पीटी परमिशन, okay, to show your pathos. You find yourself staring at the closed beige doors as you take the elevator silently with the other customers. The Bard is suggesting, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, people come here looking for support, healing or possibly witnessing the death of a loved one. It is a setting while expressing one's most intense feeling is accepted and vulnerability is welcomed.
यहाँ पे हमारी जो मोरालिटी है, हमारी जो वीक पॉइंट है, उसको क्या किया जाता है, वेलकम किया जाता है. Although hope and resiliency and compassion also exist alongside the palpable weight of anguish, fear and despair. Here the stories are being told within those beige walls. है ना, बेज वॉल्स को देख के आपको पता चलता है कि कस्टमर्स जो है, कस्टमर्स, मैं भी कस्टमर्स बोल रही हूँ, पेशेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो फील करते हैं, एक प्रिजन वॉल में कैद, एक कैदी की तरह समझते हैं अपने आप को. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एन इमोशनल लैंडस्केप्स माइक्रोकोज्म इज द एलिवेटर एंड इवन वाइल एवरीवन मे बी preoccupied with their concerns and ideas, there is a general understanding of how short life is. Obvious, वहाँ पे इसीलिए मोरालिटी का थीम था, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में जाके हमारी मोरालिटी जो है वो आपको दिखती है. ठीक है ना. यहाँ पे और क्या है, हाउ शॉर्ट लाइफ इज एंड द टिपिकल प्रिटेंशंस एंड बैरियर्स आर dismantled in that small area. The gravity of the situations can be expressed without the use of words. Obvious, there is no use of word expressing that kind of feeling. If you are sad, everyone will understand, क्योंकि वो जगह ही ऐसा है, आप sad है तभी उस place पे visit करते हैं. Okay, where a place where shedding tears is acceptable, where showing vulnerability is received with the compassion and where one may sense started humanity for the face adversity. Obvious, so the hospital is totally an opposite place as compared to our society. Okay, let's go forward. अभी देखिए क्या है. Okay, so I don't like the smell of antiseptic. अब यहाँ पे वहाँ पे वाई आई लाइक द हॉस्पिटल है, प्लस ये क्या है, कॉन्ट्रारी में बोल रहे हैं कि ठीक है हॉस्पिटल मुझे पसंद है, लेकिन वहां पे जो एंटीसेप्टिक का जो स्मेल होता है मुझे वो पसंद नहीं है. और द एयर कंडीशनिंग सेट ऑन हाई ऑल नाइट. और हाँ, आप अक्सर देखते होंगे कि हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं, एयर कंडीशनिंग का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, बहुत कम किया जाता है. ठीक है ना. और द फ्रेश फ्लावर्स टॉस, यहाँ पे देखिए, और टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा ठंड रहती है, टेम्परेचर कम रहता है. कारण क्या है, क्योंकि देखिए आप देखेंगे कम टेम्परेचर में जो डिजीजेस होती हैं वो कम स्पीड में फैलती तो हैं ही, लेकिन कम फैलती हैं. ठीक है ना. सो और द फ्रेश फ्लावर्स टॉस्ड इन द वेस्ट बास्केट. आप हमेशा देखेंगे हॉस्पिटल में जो है लोग जब विजिट करने जाते हैं तो हम लोग तो बीइंग एन इंडियन आप क्या करते हैं, फ्लावर्स लेकर जाते, फ्रूट्स लेकर जाते हैं, लेकिन बाहर की कंट्री में क्या होता है, फ्लावर्स लेकर जाते हैं. एंड दैट शो फ्लावर्स like flowers are the symbol of positivity, right ना. ये पॉजिटिविटी को दिखाता है, गेट वेल सून दिखाता है. लेकिन वहां पे आप जाएंगे तो फ्लावर्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वेस्ट बास्केट में ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं. बट आई लाइक द वे सम पीपल ऑन देयर प्लास्टिक चेयर्स. ये क्या था कि हॉस्पिटल में मुझे क्या पसंद नहीं है, ये क्या था, व्हाट आई डोंट लाइक. I like hospital as whole, but there are some features, there are some things, there are some actions which take place in the hospital which I don't like, and those are the smell of antiseptic, flowers tossed in the waste basket and the air conditioning setting at low temperature. ठीक है. But I like the way some, but अब क्या likeness है, क्या उनको पसंद है. But I like the way some people on their plastic chairs break out a notebook. break out मतलब क्या होता है, take out. break out का मतलब क्या है, take out, निकालना. Take out a notebook and invent a complex scoring system. Scoring system मतलब क्या होता है कि स्कोर करना, रिकॉर्ड करना कोई चीज. अब क्या चीज का रिकॉर्ड, टू टैली ऑफ देयर डेज ऑन अर्थ. वो लोग क्या करते हैं, और टैली करना, एक रिकॉर्ड बुक निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, डेज लिखते हैं और टैली करने की कोशिश करते हैं. किस चीज का, अपने दिन का, अपने दिनों का हिसाब करना वो लोग स्टार्ट कर देते हैं. और ये कौन करते हैं, ये पेशेंट्स करते हैं. कौन करते हैं, ये पेशेंट्स करते हैं, जिनको पता चल गया है कि अब मेरे पास कुछ काउंटेबल डेज बचे हुए हैं, किस पे, अर्थ पे. तो जो मैंने वो दिन बिता चुके हैं उसको वो लोग क्या करते हैं, वो कैलकुलेट करना, टैली अप करना स्टार्ट कर देते हैं. क्या चीज का टैली अप करते, देखिए, द कॉलम ऑन द लेफ्ट दैट शेज टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ फूल. यस, वो लोग क्या करते हैं, दो कॉलम बनाते हैं. लेफ्ट में वो ये बताते हैं कि वो कितनी बार ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी एक्शंस की हैं जो उनके फुलनेस मतलब उनकी फुलिशनेस को शो किया है. And facing the column on the right side says the times I acted like a
absent. अब समझ में आई बात? पेशेंट्स क्या करते हैं? एक they are allowed to tally their days, they are allowed to tally their actions, जो उन्होंने काम किया है, कितनी बार उन्होंने बुरा काम किया है, कितनी बार उन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि उनको पता है उसी हिसाब से मेरा लेखा जोखा होगा। जब आप लास्ट पॉइंट में रहते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने बेस्ट, अपने वर्स्ट और अपने बेस्ट डेज को क्या करते हो? आप कैलकुलेट करते हो। समझ आई बात? तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है। एंड बट आई लाइक द वे सम पीपल, यहाँ पे सम पीपल क्या है? वही पेशेंट्स ये बेसिकली दे स्टार्टेड टैली देयर डेज। क्लियर है? वही चीज यहाँ पे जो है वो लिखा गया है। अब देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये वाला चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड स्टैंजा वाइज एक्सप्रेशन ये मैं कर दूं। देखिए अब क्या है? द स्पीकर क्लेम्स दैट ही डिसलाइक्स द एंटीसेप्टिक फ्रेग्रेंसेस बिकॉज इट हाइटन्स द हॉस्पिटल्स रियलिस्टिक फील। हाँ, आप अगर हॉस्पिटल वाले फेज में जाते हैं, एंटीसेप्टिक का आपको स्मेल आएगा और वो उससे सबसे ज्यादा जो है गंदी फीलिंग आती है कि भैया हाँ हॉस्पिटल में, आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ आप हॉस्पिटल में आ गए हैं। Additionally, he dislikes the hospital's extremely low temperature. हाँ, एयर कंडीशनिंग भी उनको डिसलाइक है। And heat is similar to the fresh but wasted flowers that end up in the water basket. वो वाटर बास्केट में वैसे ही फेंका हुआ रहता है। The contrast between the transitory beauty of the flowers and the frequently fleeting nature of the recovery and therapy in a hospital is symbolized by this. हाँ, मतलब flowers का क्या होता है? वो bloom होते हैं, वो fresh होते हैं, and after some time we see कि जो flowers है वो क्या हो गया? Fade हो गया है। And this shows the condition of patients. जब patient आते हैं hospital में तो somehow they are very fresh, they are so confident that I will be cured. मैं cure हो जाऊंगी, but later on when they face some critical situations they get faded. वो क्या हो जाते हैं? फेड हो जाते हैं। उनका भी जो सिचुएशन होता है, उनका जो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस होता है, वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। And we have a waiting room while passing the time by developing a customized scoring system to access likeness. हाँ, यहाँ पे क्या है? likeness, behavior, introspection and self reflection. Yes, यहाँ पे मेन थीम का चर्चा हुआ है, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ। आपको समझ में आएगा कि मैंने इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन को क्यों अंडरलाइन किया, सर्कल किया, क्योंकि मैंने थीम में इस चीज को चर्चा किया था। Where people can think about the evaluate their activities are implied by the uses of notebook. The times I acted like a fool and the times I acted like a saint. Very important line these are. Okay, so columns show the opposite facts of the character. This rating system may be used as a tool for self evaluation. अगर हम हॉस्पिटल में हैं and I have started telling my days कि मैंने कितना दिन बुरा काम किया, कितना दिन अच्छा काम किया, तो जो भी बचे हुए दिन रहेंगे I will try to do my good things. मैं जो है अच्छी चीजें जो है वो करने की कोशिश करूंगी. So tally will help the patient to recognize their self, internal self. So वहाँ पे self introspection भी वो लोग करते हैं. Enabling people to reflect, yes, on their behavior and make efforts to grow or improve personally. Overall, these words convey a variety of ordinary and significant events that can occur in a hospital or medical setting, emphasizing. Okay, so all these activities are shown by our poet to make it very precise to us. उन्होंने बहुत precisely हमारे सामने हॉस्पिटल का जो है वो चर्चा किया है. सारी अच्छी चीजें, सारी बुरी चीजें, दोनों चीज हमारे सामने उन्होंने रखा हुआ है. चलिए देखिए क्या है. I like the long priority of the waiting, the forced intimacy of the self with the self. Each sick person standing in the middle of a field like a tree wondering what happened to the forest. Like a tree, now like a tree यहाँ पे ये क्या है? ये आपका तो सिमिली है and somehow metaphor भी है. मेटाफॉर भी होगा कि थोड़ा सा एम्प्टीनेस को शो करने के लिए किया गया है, तो ये मेटाफॉर भी हो सकता है. लाइक आई लाइक द लॉन्ग प्रायोरिटी ऑफ द वेटिंग. लॉन्ग प्रायोरिटी क्या है? यहाँ पे लॉन्ग प्रायोरिटी हॉस्पिटल को दिया गया है. एंड प्रायोरिटी का मतलब, लॉन्ग प्रायोरिटी का मतलब आपको जनरल मतलब पता है, दैट ग्रास लैंड होता है. Okay, and priority of the waiting, the forced intimacy of the self with self. वहाँ पे क्या होता है? जब आप वेटिंग रूम में रहते हैं तो क्या होता है? forced intimacy. कोई है नहीं बात करने के, तो हम लोग क्या करते हैं? खुद से ही बात करते हैं, खुद सोचते होते हैं. And each sick person standing in the middle of a field. हर एक जो sick person है, जो patient है, वो क्या है? वो field में खड़े, वो प्रायोरिटी में खड़े, तो field हो गया आपका क्या? हॉस्पिटल. और जो sick person obvious standing in the middle of a field like a tree. ये tree जो है, tree को कंपेयर किया गया क्या चीज से? sick person से, ठीक है ना.
वंडरिंग व्हाट हैपेंड टू द फॉरेस्ट, वो सोच रही कि क्या हुआ क्या है मेरे साथ, इस फॉरेस्ट में हुआ क्या है, हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, मतलब हमारे साथ क्या हुआ है, हमने क्या कर दिया ऐसा। सो दीज आर द फीलिंग शोइंग हियर। यहाँ पे देखिए क्या है, ये ग्रासलैंड लिखा हुआ था, ओके, आई एम राइटिंग इट अगेन। सो प्राइडी का मतलब था ये ना, ग्रास लैंड। So the poet depicts the miseries of the sick people through vivid images. The lonely patients in the hospital are waiting for their near and dear ones, है ना, वो लोग वेट करते रहते हैं कि कब हमारे रिलेटिव्स, हमारे लव्ड वंस आएंगे हमसे मिलने के लिए, to come to meet them. Their wait is long and continuous. उनका वेट क्या होता है, बहुत लंबा होता है ना, like the prairie मतलब ग्रासलैंड्स की तरह। Each sick person is like a tree standing alone in the middle of a vast field. एक बड़े से फील्ड में हर एक पेशेंट को यहाँ पे कंपेयर किया गया, किसके तरह है, ट्री की तरह। Isolated from the forest, they are alienated and ignored by their families. However, the poet says that he likes how the constant waiting of the patients force them into self-intimacy. आप जब अकेले वेट करते रहते हैं अपने लव्ड वंस का, तब आप क्या करते हैं, एक तराजू लेते हैं, उस पर आप जोखना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, किसने आपके साथ अच्छा किया है, किसने आपके साथ बुरा किया है, आपने कितना अच्छा किया है। तो बेसिकली सेल्फ इंटीमेसी जो है आपको वहाँ पे दिखती है, and intimacy, introspection and self reflections. For instance, he likes how the lonely patients talk with themselves or contemplate on their good and bad actions of the past, है ना, अपने पास्ट में क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, उसको हम लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली वेटिंग रूम जो है वो हम लोग को क्या करती है, सेल्फ इंटीमेसी, सेल्फ टू सेल्फ कन्वर्सेशन करने पे जो है वो मजबूर करती है, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे जो इस स्टैंजा में एक्सप्लेन किया गया है, ओके। चलिए देखिए, ये वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया, फोर्स्ड इंटीमेसी, वही चीज़ लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, दिस विल हेल्प यू टू राइट योर आंसर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ओके। देखिए यहाँ पे क्या है, सो एंड वंस आई सॉ अ मैन इन अ लाइम ग्रीन ड्रेसिंग गाउन। लाइम ग्रीन क्या होता है, एक ड्रेस होता है ना, ड्रेस होता है किसका, पेशेंट्स का होता है। हॉन्च्ड ओवर अ चेयर, हॉन्च्ड मतलब क्या होता है, एकदम झुक के, मतलब झुक के ऐसे आर्म चेयर पे जैसे बैठते हैं वैसे हॉन्च्ड ओवर अ चेयर। अ मैन हु वाज नॉट येलिंग एट द डॉक्टर्स, एक ऐसा पेशेंट जो डॉक्टर पे चिल्ला भी नहीं, येलिंग मतलब क्या होता है, शाउट करना, वो चिल्ला भी नहीं रहे। और प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रॉन्ग, ना ही तो वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है, एज इफ मेन आर मेंट टू बी स्ट्रॉन्ग, दे यूज्ड टू शो दैट दे डोंट क्राई, दे आर सो पावरफुल। But that particular patient is not showing that, he is not showing his strength there, or making a murmured phone call to his wife, ना ही वो murmured call, whisper नहीं कर रहे हैं वो, हाँ whisper, murmur का मतलब क्या होता है, whisper करना, फोन पे कर रहे हैं। बट वन सोबिंग विदाउट शेम, बल्कि वो क्या कर रहा है, सोब कर रहा है। सोब मतलब क्या होता है, क्राइंग इन पेन, क्राइंग विद वॉइस, जब आप कहाड़ के रोते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सोबिंग। लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बाहर के दुनिया में हम बनने की कोशिश करते हैं, men will try not to cry, not to show their own feelings, their deep feelings, but in hospital that patient in lime green is not yelling at the doctors, not making a murmured phone call, instead he is crying with one sobbing without a shame, pumping it all out from the bottom of the self. Pumping out, now what is the meaning of pumping out? Pumping out मतलब क्या, जब आप पंप करते तो इमोशंस निकलता है, वाटर निकलता है। यहाँ पे वी आर पंपिंग आउट, हिज पंपिंग आउट इज व्हाट, इमोशंस, इनर इमोशंस, द फ्लोइंग बिल्ज ऑफ द हेल्पलेसनेस रेग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्ज? बिल्ज इज अ पार्ट ऑफ अ शिप, जहाँ पे आप देखेंगे एक होल रहता है, जहाँ पे अगर शिप में पानी भर जाता है तो वो बिल्ज से निकाला जाता है उस पानी को। तो यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशन, ओके। helplessness and rage, a man no longer expecting to be saved। और ये आदमी जो है, ये कौन है, कौन सा पेशेंट है? एक ऐसा पेशेंट है जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है किस चीज का, अपने क्योर का, कि मैं बच सकता हूं। तो जब आप अपने लास्ट समय पे होते हैं तो आपको शर्म, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो सब छूट जाता है। यू जस्ट थिंक अबाउट योर इनर सेल्फ, जो मेरा मन कर रहा है मैं वो करूंगा। तो वहीं पे ये चीज बताया जा रहा है, ओके। दिस पेशेंट हैज बीन डायग्नोज्ड विद अ टर्मिनल डिजीज एंड हैज नो होप। ऑब्वियस इसका होप नहीं है, तो एक कोई फटाल डिजीज से गुजर रहा है,
है ना, ठीक है, फटाल डिजीज से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये एक पेशेंट्स का क्या है, एक जो है उनके लक्षण हैं। जब किसी पेशेंट्स को पता चल जाता है कि हम अब नहीं बचेंगे तो उनका यही एक्शन रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, दिस इज एनोटेशन ऑफ द गिवन स्टैंजा, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऑल्सो, ले लीजिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए अब क्या है, बट इफ यू लुक्ड यू कुड सी दैट ही वॉज होल्डिंग हिज ओन हैंड इन सिंपैथी। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो उस समय वो पेशेंट अपने आप को ही क्या कर रहा है, हाथ में हाथ डाल के क्या कर रहा है, सिंपैथी दे रहा है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर रहा है। किस चीज के लिए, यस आई विल बी क्योर, मैं क्योर हो जाऊंगा। लिसनिंग टू एवरी सिंगल वर्ड, वो क्या कर रहा है, हर एक सिंगल वर्ड को वो सुन रहा है। एंड ही वॉज टेलिंग हिमसेल्फ एवरीथिंग, सुन के अपने आप को क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये हमारा लास्ट पार्ट था पोएम का। ओके, बट इफ यू लुक्ड यू कुड सी दैट ही वाज होल्डिंग हिज ओन हैंड इन सिंपैथी, लिसनिंग टू एवरी सिंगल वर्ड एंड ही वाज टेलिंग हिमसेल्फ एवरीथिंग, है ना। ये कौन करते हैं, ये एक एक्शन है, किसका, एक पेशेंट का, जो इसको पता चल गया है कि नाउ इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, अब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो बस वो ये एक्शन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो आई होप यू गॉट द रीजंस व्हाई टोनी हॉगलैंड स्टार्टेड लाइकिंग हॉस्पिटल। ओके, सो दीज आर द बैड एंड गुड थिंग्स। ओके, यहाँ पे दोनों चीज उन्होंने बैलेंस किया हुआ है, ऐसा नहीं कि सारी पॉजिटिव चीजों को ही दिखाया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजों को इन्होंने दिखाया है। ओके, लेट्स डिस्कस फास्टली डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस योर पोएट हैज यूज्ड। यू विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, आई एम गोइंग फॉरवर्ड नाउ। पोएटिक डिवाइस, सी देखिए, पहला पोएटिक है मेटाफॉर। हॉस्पिटल इज डिस्क्राइब एज द लॉन्ग प्राइडी हियर सो ऑफ द वेटिंग, yes, which is a metaphor that compares what the hospital waiting area to the vast emphatic prairie. Similarly भी है a tree wandering that happened to the forest। वहाँ पे tree जो है ना, tree को compare किया गया है patient से, पेशेंट्स को किया गया वही। सिमिलरली पर्सोनिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया है। व्हेन द पोएट टॉक्स अबाउट द पेशेंट्स ब्रेकिंग आउट अ नोटबुक एंड इन्वेंटिंग, अच्छा ब्रेकिंग आउट, तो यहाँ पे ब्रेकिंग आउट मतलब पर्सोनिफिकेशन, और ब्रेकिंग आउट वो खुद थोड़े ना ब्रेक होगा, पेशेंट एक निकालता है ना बैग से, तब वो आएगा। सो इन्वेंटिंग अ स्कोरिंग सिस्टम, सो फॉर देयर लाइव्स दिस कैन बी सीन एज अ फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नोटबुक कांट ब्रेक आउट on their own, but this way of speaking helps to vividly illustrate the patient's self-reflection process. Okay, अब देखिए क्या है ये, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। पोएटिक डिवाइस ये है हमारा लास्ट, आयरनी एंड इमेजिनी। ऑब्वियस आयरनी तो आप जानते हैं, टाइटल में ही आयरनी जो है वो छुपी हुई है, क्योंकि वाई आई लाइक द हॉस्पिटल, देयर इज नो थिंग, नॉर्मल पीपल थिंक्स दैट देयर इज नथिंग टू बी लाइक to be liked in the hospital, but our poet has shown us कि हाँ there is something which we can like in hospital. So imaginary क्या है, the poet uses vivid imagery throughout the poem, painting a picture of the hospital. Yes, he has shown his level of imagination, है ना। while जब हम लोग ये पोएम पढ़ रहे थे तो हमको, मेरे को तो दिख गया पूरा हॉस्पिटल में सीन, देख ली कि हाँ कैसे एक चल रहा है, कैसे कोई फील कर रहा है, पेशेंट्स को मैंने दिख लिया। सो यहाँ पे पोएट ने बहुत अच्छे से इमेजिनरी का जो है इस्तेमाल किया है। तो यहीं पे हमारा जो वाई आई लाइक द हॉस्पिटल जो है वो हर तरीके से ख़त्म होता है। और अगर मुझे और भी कमेंट्स आए और आपको पसंद आया तो मैं वाई आई लाइक द हॉस्पिटल पे बेस्ड कुछ MCQs, कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।